Okay, hi everyone. So we are going to solve three important questions for today. Now, before I start this question, I would like to give you two definition. First definition is about the renunciation, okay, and second is a termination. Now, renunciation is something which is a voluntary act by which an Indian citizen consciously give up their Indian citizenship. Okay, this is what. Now, section 9 is regarding the termination. It refers to automatic cessation of Indian citizenship upon acquiring the citizenship of the another country. अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान में रख के बिल्कुल इफ यू सी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट व्हाट डज इट से यू सी इट सेज इफ ए पेरेंट renounces Indian citizenship under section 8. Under section 8. So we are talking about the section 8. Any minor child of that individual automatically ceases to be the citizen of India but can apply for Indian citizenship again. Clear है आपको? समझ में आ रही है चीजें? If the parent renounces Indian citizenship under section 8 and then चाइल्ड कैन अप्लाई. ठीक है, अगर सिंपल अगर सेक्शन 8 है इट मीन्स चाइल्ड कैन अप्लाई. ओके, सेकेंड, ए पर्सन हुज सिटीजनशिप वॉज टर्मिनेटेड सेक्शन 9 अंडर सेक्शन 9 कैन नॉट रीगेन इंडियन सिटीजनशिप. सो 9 के अंदर कैन नॉट रीगेन इंडियन सिटीजनशिप. क्लियर? अब आप देखो यहां पे द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. अब आप यहां पे आप सेक्शन 8 देखो. सेक्शन 8 रेनुंसिएशन, यू नो द डेफिनेशन, आई एक्सप्लेन्ड यू. अब यहां पे क्या लिखा है देखो. प्रोवाइडेड दैट एनी सच चाइल्ड मे विद इन 1 year आफ्टर अटेनिंग फुल एज मेक्स ए डिक्लेरेशन दैट ही विशेस टू बी द रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप एंड शैल देयर अपॉन अगेन बिकम द सिटीजन. तो सेक्शन 8 के अंदर अ चाइल्ड कैन again become the citizen. A person whose citizenship was terminated cannot regain Indian citizenship but may be eligible for OCI. समझ में आया? So there is no concept of getting citizenship again. They will declare as a OCI. Okay? So this is what you will remember, because if you see recently one judgment was there. Judgment is not very important. If you want to read, you can pause and read. But on the basis of this judgment, okay, we have framed this question. तो ये important है आपके लिए. वैसे भी पॉलिटी का पार्ट है, आपको करना है. So this is what all statement about. Second important, if you see, second important question, it talks about the BRICS के दो banks. Financial mechanism, there are two financial mechanism of the BRICS. First is a new development bank. और दूसरा है कंटिजेंट रिजर्व असेसमेंट अरेंजमेंट. ठीक है, अब क्या कह रहा है कि CRA इज अ फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी सपोर्ट इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस, while the NDB is a bank that provides financial support throughout loans. This is what. दूसरा, CRA is limited to the BRICS countries. CRA is limited to the BRICS. NDB means other countries as well. Clear? थर्ड में देखो, CRA and DB both have equal contribution from the BRICS nation. Both have equal contribution from the BRICS nation. अब देख लो आंसर. थर्ड इज इनकरेक्ट. ओके, हम देख लेते हैं अभी. The two primary financial mechanism for the BRICS are the NDB. Now if you see your NDB, it's like started with this capital with equal contribution from all the BRICS nation. ठीक है, अब इनमें आप देखोगे यहाँ पे मेंबरशिप ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड फंडिंग फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स दैट प्रमोट द इकोनॉमिक में. नाउ इफ यू सी अबाउट CRA, ओके, CRA को अगर आप देखो यहाँ पे तो इट इज अ फाइनेंशियल सेफ्टी नेट फॉर ब्रिक्स कंट्री प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट इन द टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस. ठीक है, नाउ कैपिटल देख लो 100 बिलियन विद चाइना कॉन्ट्रीब्यूटिंग द लार्जेस्ट शेयर 41%. सो ये जो आपका स्टेटमेंट था इक्वल शेयर बोथ, आपने एनडीबी में भी देखा इक्वल है, बट CRA में आप देखो यहाँ पे चाइना इज अराउंड 41%.
तो ये इक्वल वर्ड यहाँ गलत है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, इट्स लिमिटेड टू द ब्रिक्स कंट्री, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट दैट CRA इज लिमिटेड टू द ब्रिक्स कंट्री एंड NDB मीन्स ऑल डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल। तो क्लियर है, आंसर इज 2 and 3, 1 and 2, आंसर 3 इज इनकरेक्ट। क्लियर, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये भी मैं कितने अच्छे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। एवरी क्वेश्चन इज लाइक वेरी गुड, ओके। अगर आपको वेरी गुड नहीं समझ में आ रहा है तो मार्क माई वर्ड्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब आप देखो, क्लाइमेट फाइनेंस एज ए डिफाइंड इन UNFCCC, इसका रेफर क्या, इट रेफर्स टू लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग ड्रॉन फ्रॉम द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अगर आपके एग्जाम में भी आएगा ना, एंड आई बेट दिस टाइम क्लाइमेट फाइनेंस, बिकॉज राइट नाउ इफ यू सी अजरबैजान बाकू, उसमें यही बात हो रही है फाइनेंशियल मैकेनिज्म की, ओके अभी भी यही बात हो रही है। तो क्वांटिफाइड गोल है ना वो NCQ एक इनिशिएटिव है, राइट। इट्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैकेनिज्म, ओके, क्वांटिटिव गोल। तो आप देखो यहाँ पे, इट एम्स टू सपोर्ट द मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन सेक्शन दैट एड्रेस द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लियर है। क्लाइमेट फाइनेंस इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है अंडर UNFCCC इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए ना। इफ यू सी द आंसर इज A, इट सेज 1 and 2, ओके। तो आप डेफिनेशन देखो, अभी देखो ये आर्टिकल से लिया गया है, बट इफ यू सी द डेफिनेशन, committed to mobilize the funds for developing countries under the UNFCCC. So it's not something exclusively. Climate finance as defined in CCC involves financial flows from various public and private both. पहला सही है, ठीक है। Local, national and transnational aimed at supporting the climate change and mitigation. It is not exclusive. क्लियर है, ठीक है। तो पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। क्लियर, अब ये आर्टिकल से लिया गया है डेफिनेशन, आप पढ़ोगे। अगर ये आर्टिकल हिंदू का था तो इस आर्टिकल से मैंने एक क्वेश्चन, हर कुछ का एक फ्रेमवर्क रेडी है। जस्ट देखो, आपको आइडिया नहीं है कि एक टॉपिक से, बट इफ यू गिव मी एनी टॉपिक आई कैन प्रिपेयर द बेस्ट क्वेश्चन। तो जब मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूं तो आई नीड टॉपिक्स, राइट। फॉर दैट आई हैव टू रेफर हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मॉर्निंग स्टैंडर्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, PIB, डाउन टू अर्थ एंड अदर UN वेबसाइट्स। इतना मेरा डेली का काम है। दैट्स वाई यू फाइंड क्वेश्चंस, पता नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं क्या, इट्स ऑल इन दिस सोर्स। अब UPSC ने तो नहीं कहा है आपको हिंदू पढ़ने के लिए, बट एज ए ह्यूमन वी कांट डू एवरीथिंग। आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई हैव ओनली टू डू इज द प्रीलिम्स पार्ट। मुझे ना ऑप्शनल करना ना मेंस करना, सो आई हैव टाइम टू स्पेंड। दैट्स वाई यू नीड समवन हु विल गिव डू ऑल दिस टास्क एंड गिव यू। और वही मैं कर रहा हूँ। आपको बोला है मेंस करने के लिए, प्रीलिम्स में कर करके दे रहा हूँ आपको, राइट। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू फॉलो। सो दोज वर स्ट्रगलिंग, 100% यू शुड गो फॉर द गोल्ड टाइड प्रीलिम्स के लिए। रेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द गोल्ड टाइड। थैंक यू सो मच।